हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। फोर्थ क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्ट ऑफ द मानसून रेन फॉर इंडिया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई रिपीट अगेन, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट ऑफ द मानसून rainfall in India. The characteristics of monsoon rainfall in India, they depend upon to some point. The first point here, the most important, the duration of the monsoon varies from the 100 to the 120 day from earlier June to the mid September. You know that there is a most important point first. The duration of the monsoon varies from 100 to the 150 day from earlier June to the mid September. And second point, it's also important, around the time of its arrival, the normal rainfall increasing suddenly and continue regularly for several days. This is called to the burst of the monsoon. You know that there is a question most important here. What is the burst of monsoon? Important question making here. The answer here, around the time of its arrival, the normally rainfall is increasing suddenly and continue regularly to the several days. This is called to the burst of the monsoon. And third point here, they are distinct from to the pre-monsoon showers because of their increasing to rainfall amount and regularity. That is important here. They are distinguished from to pre-monsoon shower because of their increasing the rainfall amount and regularity. The fourth point is the most important here. The monsoon arrives at the southern tip of the Indian Peninsula generally by the first week of June. The monsoon arrives at the southern tip. There is a generally first week of June. There is an important point here. And the last point, the rainfall is unevenly distributed across the country. There is an important point here. The rainfall is unevenly distributed across to the country. And the next year, effect. The effect of the monsoon rainfall in India. There is the most important. The point here, agriculture in India largely depend on the Indian monsoon for water. Later low and excessive rain have a negative impact upon to the crops. You know that effect of monsoon is rainfall in India. There is a first point, is the most important. Agriculture in India is largely depend on the Indian monsoon for the water. Later low is excessive, the rains have a negative impact upon to the crops. And the B here, due to the uneven distribution of the rainfall across the country, there are a few places that are drought prone and the few are flood affected. And C point here, the monsoon provides the Indian with a rise to the climatical pattern. Hence it is a spirit of the presence of great regional variation. It is have influence upon the country and its people. The effect of monsoon is the rainfall is the 3 point is the most important for the exam view. यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाता है कि भारत में मानसूनी वर्षा की विशेषता एवं प्रभाव आपको बताना है कि भारत में मानसूनी वर्षा की क्या विशेषता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है भारत के मानसून पे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम भी उसके अंतर्गत रखता है। ये कहते हैं भारत मानसून वर्षा की विशेषता की बात करें तो पहली पॉइंट तो यही दर्शाता है कि मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक 100 से 120 दिन तक होती है। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है कि मानसून की अवधि जून से आरंभ से सितंबर के मध्य तक 100 से 120 दिनों तक होती है। 365 दिनों में 120 दिन जो होता है वो मानसून के लिए होता है और इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है। यानी देखा जाए तो मानसून जैसे आती है वर्षा को जो है अचानक बढ़ जाना इस बात को दर्शाता है और कई दिनों तक नियमित रूप से जारी रहती है। इसे मानसून का जो है पृष्ठपोष कहते हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण आता है ब्रस्टिस यानी पृष्ठपोष।
तो अगर एग्जाम में प्रश्न फोर्ट आ जाता है या बेस्टेड आ जाता है तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो कि इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है और कई दिनों तक जो है नियमित रूप से जारी रहती है। इसे ही जो है मानसून का विस्फोट कहते हैं, विस्फोट कहते हैं। तो विस्फोट काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है यहाँ पर। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो वर्षा की मात्रा नियमित में वृद्धि के कारण उन्हें पूर्व मानसून वर्षा से अलग हो जाता है। तो ये भी बात में इम्पोर्टेंट रखता है कि वर्षा की मात्रा नियमित में वृद्धि के कारण उन्हें जो है पूर्व मानसून वर्षा से अलग हो जाता है। यदि हम चौथे पॉइंट की बात करें तो साफ हो जाता है कि मानसून आमतौर पर जून से पहले सप्ताह तक भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे पर पहुंच जाता है। यानी जो है पेनिनसुलर पे जो है ये पहुंच जाता है। कब पहुंचता है? जब मानसून आमतौर पर जून के पहले सप्ताह तक ये पेनिनसुल के दक्षिण सिरे पर पहुंच जाता है। यानी प्रायद्वीपीय के दक्षिण सिरों पर पहुंच जाना इसका स्वभाव होता है। अगर हम पाँचवें पॉइंट की बात करें तो कहते हैं देश भर में वर्षा का वितरण असामान्य रूप से होता है। कहीं अधिक वर्षा होती है तो कहीं कम होता है तो कहीं होती ही नहीं है। तो यही पाँचवा पॉइंट जो है दर्शाता है कि देश भर में वर्षा का वितरण, ठीक है, असामान्य रूप से होता है। यानी सामान्य रूप से नहीं होता है, असामान्य रूप से होता है। कहीं अधिक होना, कहीं कम होना, कहीं होना ही नहीं। कहते हैं अगर हम बात करें भारत में मानसून वर्षा के प्रभाव, देखिए विशेषता के साथ प्रभाव भी जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत में मानसून की वर्षा के क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहला प्रभाव तो यही आपको दर्शा सकता है कि भारत में कृषि पानी के लिए काफ़ी हद तक भारतीय मानसून पर निर्भर करती है। आपको पता है पुराने समय में लोग जो होते थे, किसान जो होते थे, जो है टकटकी लगा के आसमान में देखते कि कब बारिश होगा, कब वो फसल लगाएंगे। तो ये पैटर्न जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी उस समय के अंतर्गत कि जितने भी किसान थे वो वर्षा पर निर्भर थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में जो है ट्यूबवेल लगाई गई है, नदियाँ खोदी गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और सिंचाई के साधन जो है हर मौसम हर समय उपलब्ध हो जाता है। तो इससे जो है भुखमरी की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन वही हम पुराने समय में देख के इसके प्रभाव को तो कहते हैं भारत में कृषि पानी के लिए काफ़ी हद तक भारतीय मानसून पर निर्भर हुआ करते थे। देर से कम या अत्यधिक बारिश या फसलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। देखिए ऐसा होता था कि फसल पक जाती थी लेकिन अचानक क्या होता था, बारिश हो जाती थी, जिसके कारण फसल बर्बाद हो जाता था पूरी तरह से, ठीक है। या कभी मौसम निकलती चली जा रही थी और बरसात ही नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो फसल जो रहती थी पिछड़ जाती थी। तो मानसून के कारण जो है उस समय काफ़ी प्रभाव कृषि पर देखने को मिलता था। अगर बात करें हम दूसरे पॉइंट की तो साफ करता है कि देश भर में वर्षा के असामान्य वितरण के कारण कुछ स्थान ऐसे थे जो सूखे प्रबंध थे और कुछ बाढ़ प्रभावित थे। तो भारत में अक्सर देखने को मिलता है कि बरसात का जो यहाँ पर वितरण है वो असामान्य रूप से है। कहीं अधिक बारिश होती है तो कहीं बरसात का नामो निशान नहीं होता, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। और कई क्षेत्र जो होते हैं बाढ़ से ही प्रभावित होते हैं। तो भारत में तो अक्सर ही देखने को मिला ही है कि एक क्षेत्र में वर्षा हो ही नहीं रही है और एक क्षेत्र में इतना हो रहा है कि बाढ़ की स्थिति पैदा हो गया है। तो भारत में जो देखा जाए तो मानसून का जो है जो वर्षा का जो है असामान्य वितरण जो है काफ़ी प्रभाव यहाँ पर जो है भारतीय मानसून दिखाता है। अगर हम सी पार्ट की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शा रहा है कि मानसून भारत को एक विविध जलवायु पैटर्न प्रदान करती है। मैंने इस क्वेश्चन में पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि मानसून भारत को एक विविध जलवायु पैटर्न प्रदान करता है। अगर आप किसी और कंट्री की बात कर ले तो ऐसा मानसून आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जैसा भारत में होता है। कहते हैं सर्दी हो तो सर्दी में भी आपको गर्मी वाले क्षेत्र मिल जाएंगे और गर्मी हो तो सर्दी वाले क्षेत्र भी मिल जाएंगे। मान लीजिए अगर सर्दी का समय है तो आपको राजस्थान में जो है गर्मी मिलेगी दिन के टाइम, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर अगर काफ़ी गर्मी पड़ रही है भारत के पूरे क्षेत्र में, तो ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पर सर्दी पड़ रही होती है, जैसे आपका शिमला। तो समझ गए ना कि भारत में जो है कितनी विविधता पाई जाती है मानसून के अंतर्गत। यानी मानसून भारत को एक विविध जलवायु पैटर्न प्रदान करती है। इसलिए जो है महान क्षेत्रीय विविधताओं की उपस्थिति के बावजूद इसका देश और इसके लोगों पर एक कृत प्रभाव होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसमें हम विशेषता और प्रभाव का जो है विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश किया है। और इसका आंसर जो है बहुत ही साधारण है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है।
आपको एक बार समझ लेने की आवश्यकता है। एक बार समझ लोगे तो ये क्वेश्चन का जो है आंसर आप भली भांति लिख पाओगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने कोशिश किया अच्छे से समझाने का, आपने करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना सा कार्य करना है कि जो है यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ समय के लिए लगा देना है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन आपको प्राप्त हुआ है आने वाला समय में और भी क्वेश्चन प्राप्त हो सकता है। इसके लिए सब्सक्राइब करके रखना आपके फ़ायदे में रहेगा।